Hello students, class 12th biology chapter 8, that is human health and disease. Students, I am talking about human health. What is the means of human health? Is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. The WHO definitions of health recognizes three dimensions of health: फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन जो दी है, उन्होंने यही दी है कि इंसान को, पर्सन को, जो ह्यूमंस है उसका फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रहना ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ों में फिट है तभी वह हेल्दी है, अदरवाइज वो अनहेल्दी है। राइट। फिजिकल हेल्थ क्या है? Perfect functioning of all body parts, that is various organs and organ systems. It can be determined by various tests. Mental health क्या है? Implies harmony between the individuals and its environment. A mentally sound individual is free from tensions and anxiety, etc., and therefore performs his functions in a better way in his environment. Unlike physical health, it is difficult to assess the mental health. फिजिकली हेल्थ तो आप बॉडी से पूरी तरह से हेल्दी है माना जाता है, लेकिन मेंटली भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो हेल्दी नहीं है। सोशल हेल्थ क्या होता है? Implies that every person's living a society possesses basic requirements of life, that is good earning, good food and clean drinking water, a clean place of living, a happy family, cooperative interactions with neighbors and friends, and is leading a happy, cheerful life. Recently, a fourth dimension, that is spiritual health, has also been suggested. Disease. What is disease? Any physical or functional changes from the normal state that causes discomfort or disability or impairs the health of a living organism may be called a disease. Alternatively, malfunctioning of the body or part of it with specific symptoms is termed disease. Disease can be broadly grouped into infections and non-infections, है ना। इन्फेक्शियस क्या होता है? डिसीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। देखिए, दैट इज एड्स है, कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, एट्सेट्रा। ये इन्फेक्शियस डिसीज भी टू टाइप्स के होते हैं ना, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शंस के थ्रू होते हैं, जिनसे इन्फेक्शन हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, वो इन्फेक्शियस डिसीज होता है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज वो होते हैं जो इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, जिनसे डिसीज विच कैन नॉट ट्रांसमिटेड, जिसमें कि डिसीज ट्रांसमिटेड नहीं हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। दैट इज कैंसर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। अगर किसी में विटामिन की कमी है तो वो क्या, अगर एक पर्सन में है तो क्या वो दूसरे पर्सन में भी होगी? नो, राइट। कॉमन डिसीज इन ह्यूमन बींग्स में जो कुछ कॉमन डिसीज़ होती हैं, वो कॉमन डिसीज़ कौन कौन सी हैं? The disease causing microorganisms like bacteria, virus, fungus, protozoa, helminthes are called the pathogens. Pathogens क्या होते हैं? Pathogens वो होते हैं जो डिसीज़ फैलाते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथीस है। ये सब क्या है? पैथोजेंस हैं, जो बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिनके थ्रू डिसीज़ होती है। The pathogens can enter the body by viruses means and multiply and interfere with normal viral activities, resulting in morphological and functional damages. ये पैथोजेंस जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं वायरसेस के थ्रू,
फिर वो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और आपकी जो नॉर्मल बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उसको डैमेज कर देते हैं, उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, उनके फंक्शन को डैमेज कर देते हैं। तो ये क्या है, कुछ कॉमन डिसीज़ होती हैं। अब बात आती है कि भाई प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया। मलेरिया जो फैलता है, Malaria has been for thousands of years a very serious disease of the tropical and temperate region. It was almost eliminated a few years back with the efforts of World Health Organizations and our national malaria eradicate programs. But unfortunately, it has appeared again. क्या होते हैं इसके सिम्टम्स, क्या होते हैं? The attack, the malaria is protected by yearnings, tiredness, headache, muscular pain. During the fever, the patient feels chilly and shivers and has acute headache, nausea and high temperature. After a few hours, the body respirates freely and the temperature becomes normal. जो इसकी लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, देयर आर 4 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन मलेरिया। पी वाइवैक्स, पी ओवेल, पी मलेरिया, पी फैल्सीफेरम भी होते हैं, प्लस स्मॉल स्पोरोजॉइड्स थ्रू द mosquito and multiplies within the resulting the rupture the release which is responsible for high fever for days. The malaria parasites are carried from the infected to the healthy person by the female Anopheles mosquito. The mosquito pick up the parasites with the blood से वो क्या करता है, पैरासाइट्स को पिकअप कर लेता है। when it bites an infected person, और infected person को बाइट करता है, वो तो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है, देन वो एक हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देता है। when this infected mosquito bite a healthy person, parasites migrate into his blood with the saliva which is mosquito inject before sucking up blood to prevent its clotting. Plasmodium completes its life cycle in 2 phases and 2 hosts, asexual phase in the human host and sexual phase in the female Anopheles mosquito host. Men and mosquitoes are regarded secondary host and primary host respectively. The life cycle of Plasmodium vivax may be subdivided into 3 phases. A phase of growth and asexual multiplications occurring in man and called a schizogony, sexual phase or a gamogony, which start in man and it is completed in the mosquito, and an asexual multiplicative phase termed sporogony होता है in the mosquito. आपके 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं बॉडी में। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। बैरियर मतलब क्या हुआ, रोकना। आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई एंटीजन्स एंटर करता है तो उसको अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देना, उसको वहीं जाकर रोक देना। क्या 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 होते हैं, बैरियर्स होते हैं, राइट। तो जो बैरियर्स होते हैं वो बैरियर्स, सबसे पहले दिया फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर मतलब जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि स्किन, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड
यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। स्किन, आपकी स्किन में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे आपके बैक्टीरिया वायरसेस आपके हैंड में, बैक्टीरियाज आपके हाथों में होते हैं, लेकिन वो स्किन उनको रोकती है, उनको बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती है ना। म्यूकस, एपिथेलियम की जो लाइनिंग होती है, कोटिंग होती है, तो म्यूकस होती है, तो म्यूकस भी क्या करती है आपकी बॉडी के अंदर, अगर आपने कुछ खाया पिया, इसोफेगस के ऊपर जो अंदर जो लाइनिंग होती है, म्यूकस की जो लाइनिंग होती है, आप अगर खाते हैं तो कोई बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है तो म्यूकस क्या करेगा, उसको वहीं से ट्रैप कर लेगा, उसको आपके अंदर नहीं जाने देगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? एसिड इन स्टमक एंड सलाइवा इन माउथ। आपकी स्टमक में जो एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, वो क्या करता है, जब कोई भी बैक्टीरिया आपकी फूड के थ्रू आपके स्टमक में चला जाता है तो वो उसको वहाँ पर किल कर देता है। आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा है वो भी उसको किल कर देता है। सेलुलर बैरियर, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, जो सेल्स के अंदर जो होते हैं वो ये ल्यूकोसाइट सेल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स जो होते हैं, मोनोसाइट सेल्स जो होते हैं, वो उनको वहीं ख़त्म कर देते हैं। साइटोकाइनिन बैरियर, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट्स प्रोटीन्स कॉल्ड द इंटरफेरॉन। जो इन्फेक्टेड सेल है, जैसे कि कोई एक सेल है वो इन्फेक्टेड है, उसके अंदर कोई वायरस है, अंदर चला गया है बैक्टीरिया वायरस, अब वो क्या करेगा, वो सेल एक प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन। वो आपके अदर सेल्स को बचाता है, वो खुद तो डैमेज हो ही गया है, लेकिन जो अदर सेल है उसके पास, उनको वो डैमेज होने से या उस किसी भी बैक्टीरिया वायरस को उसके ऊपर अटैक करने से उसको रोकता है, राइट। बात आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हमने जो बीमारियों से लड़ना सीखा है, दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव क्या होती है? पर्सन की खुद की बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव, जो बाहर से एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती हैं, दैट इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। Primary and secondary response are carried out with the help of B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes produce an army of protein called antibodies, each having two light and two heavy chains. It involves two types of lymphocytes. Lymphocytes two types के cells होते हैं, B lymphocytes and T lymphocytes. ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है? तो प्राइमरी रिस्पॉन्स वो होगा जब कोई भी बीमारी या कोई भी एंटीजेंस जब आपकी बॉडी, कोई भी पैथोजेंस जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे अंदर की जो एंटीबॉडीज़ है वो उसको पहले क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, समझती है। तो पहली बार में तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, थोड़ा बहुत ही रिस्पॉन्स उसको देती है, वो बीमारी हो जाती है, धीरे धीरे फिर वो सही भी हो जाती है। लेकिन सेकंड टाइम फिर वही बीमारी जब उसके ऊपर अटैक करती है पर्सन के ऊपर, तो हमारी बॉडी के एंटीबॉडी, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं, और वो पहचान जाते हैं कि ये वही डिसीज़ है जो पहले भी हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुई थी, और वो उसको तेज़ी से क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उस बीमारी को किल कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स हमारी बोन्स के बोन मेरो के अंदर बनते हैं, टी सेल्स। ठीक है। लेकिन वो आगे चलकर थाइमस में जाकर क्या मैच्योर होते हैं। ये जो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की एक आर्मी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ईच हैविंग टू लाइट एंड टू हैवी चेन्स। हर जो प्रोटीन्स हैं वो उनके पास क्या होते हैं, दो हैवी चेन होती है और दो लाइट चेन होती है ना। इनमें टू टाइप्स के लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स शो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स HI, टी लिम्फोसाइट शो सेल मीडिएट इम्यूनिटी CMI। द एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। एंटीबॉडीज जो होते हैं ना वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें इम्यूनोलॉजी
immunoglobulins and are of various types like IgA, IgM, IgE, IgG. ये एंटीबॉडीज़ होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के यहाँ दिए हुए हैं। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। हर एंटीबॉडीज़ की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कैरी किए हुए होते हैं। 2 आर लॉन्ग कॉल्ड हैवी चेन्स एंड 2 आर शॉर्ट कॉल्ड द light chains. Both are arranged in the shapes of Y, hence an antibody is represented as H2L2. On the basis of productions of antibodies, immunity can be further categorized as a जो प्रोडक्शन के बेसिस पर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी कुछ कैटेगरीज है। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी, बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस। पैसिव इम्यूनिटी क्या होते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल्स टू अनदर। कॉलेस्ट्रम क्या होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है जो कि प्रोवाइडेड होता है बाय द मदर के द्वारा, राइट, मदर के द्वारा ही प्रोवाइड होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन ब्लड इंक्लूड IgA, IgM, IgE एट्सेट्रा। दे आर कॉल्ड द ह्यूमरल इम्यूनिटी ड्यू टू प्रेजेंस इन ब्लड में प्रेजेंस होती हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन मॉलिक्यूल्स और फॉरेन बॉडीज समटाइम्स जेनेटिक और अननोन रीजंस। The body attacks self cells, the result in damage to the body and called autoimmune disease. एलर्जी क्या होती है, एलर्जी जैसे कि आपको पता होगा एलर्जी में भी क्या होता है, बहुत सारे एंटीजेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। बॉडी इन्वायरमेंट में जो वो एंटीजेंस जो प्रेजेंट होते हैं जो एलर्जी कराते हैं, और जो एलर्जी कराने वाले जो एंटीजेंस होते हैं उनको एलर्जेंस भी कहा जाता है। द सब्सटेंसेस टू विच सच इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस इज कॉल्ड द एलर्जेंस। The antibodies produced due to these are IgE types allergy is due to secretions of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. mast cells से जाकर ये जो हिस्टामिन और जो सेरोटोनिन ये जो एलर्जी वाले केमिकल्स है ये जाकर मास्ट सेल से जाकर चिपक जाते हैं और जितनी भी एलर्जीज जो होती हैं उन सबको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। Immune system in the body. The human immune system include lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. Immune system जो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज़। लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर द ऑर्गन वेयर ऑरिजिन एंड मैच्यूरेशंस एंड proliferations of lymphocytes occurs. Primary lymphoid organ include bone marrow and thymus. bone marrow के अंदर होते हैं ये T cells जो thymus में जाकर मैच्योर हो जाते हैं। There is lymphoid tissues also located within the lining of respiratory, digestive and urogenital tract called the mucosal associated lymphoid tissues MALT. It constitute 50% of lymphoid tissues in human body. Transmission of HIV viruses occurs sexual contact। आप जो HIV जो होता है वो ट्रांसमिटेड हो सकता है किसके द्वारा, एक तो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से, ट्रांसफ्यूजन ऑफ contaminated blood and blood product, sharing infected needles as a intravenous drug absorbs infected mother to her child through placenta, replication of retrovirus in macrophages. एड्स का भी यही है, इट डज नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट HIV एड्स जो है नहीं होता है, इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। देयर इज ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स।
That may vary from 5 to 10 years. Diagnostic test for AIDS is ELSA, enzyme linked immunosorbent assay. The treatment of this disease with antiretroviral drug is partially affected. जो डिसीज़ जो इसकी बनी हुई है वो अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ है, लेकिन जो है वो पार्शली इफेक्टेड है एंड जस्ट प्रोलॉन्ग्ड द लाइफ बट नॉट प्रिवेंट द डेथ। ये आपकी लाइफ को जरूर लंबा खींच सकता है लेकिन आपको मरने से नहीं बचा सकता, राइट। कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिसीज़। कैंसर एक बहुत ही बड़ी डिसीज़ होती है जो कि ह्यूमन बींग्स में होती है, बहुत ही मेजर होती है, इससे डेथ भी हो जाती है। इसमें जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो जब शो ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉल द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वायरस, जब किसी वायरस के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उसके द्वारा जब कॉन्टैक्ट में आती है अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ उन सेल्स की होने लगती है जिसके कारण क्या कहते हैं ट्यूमर बन जाता है। ये भी 2 टाइप्स, ट्यूमर, मैलिजेंट ट्यूमर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, टेक केयर।